Hello students, welcome to Top Class Physics channel. And you can see here that name of this PPT is Advancer because under this channel that is Top Class Physics, I already dealing with physics only, but now this channel will be dealing with all the subject for JEE and NEETs. So that's why the name has been changed by us, that is Advancer is the new name of this channel. So the PPT is under that institute, that is Advancer. So let's start the second part of the NEET 2022 series. That is I already discussed about the first part, that we covered the first part, that is mechanical part from unit and dimension to gravitation. So in this part we'll cover the second part of class 11 physics, that is from elasticity to wave and oscillation. So let's start. So in this year the first question that is from fluid mechanics. Okay, you can see here, just read it and try from yourself first. If a slope bubble expands, the pressure inside the bubble. So what is the answer of this? You can see here the question is very simple, that if a slope bubble expands, so first draw a slope bubble. That is this is my slope bubble. Okay, if a slope bubble expands, so what is the pressure inside the bubble? So as we know that the inside pressure of a slope bubble, what is the inside pressure? So that pressure equation is P equals to 4 tension by, say the radius is say R, so that is R, right? P equals to 4 into tension by radius, right? Now if the slope bubble is expands, so expand in outer direction, that means our slope bubble will become the bigger sized. Now the radius will be bigger, right? So if the radius will increased, so R will increased. If radius is increased by R dash, then the pressure will be decreased, right? From this equation, as we know that if radius is increased, because slope bubble is now expanding, so if slope bubble is expands, so radius will be increased and pressure will be decreased, right? So that's why the answer will be very simple, option D, it will decrease. Okay, understood? Okay, next question you can see here, a spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. So first draw a long column. This is my long column and this is filled by liquid. Okay, and that liquid is highly viscous, that is very much friction force is there. As we know, for a solid case the resistive force is friction for a motion, and for liquid case or fluid case the friction is named as viscous force, right? तो एक बॉल ड्रॉप कर रहा है, that is in downward direction, right? In downward direction. So the curve in the graph shown, which represents the speed of a ball v as a function of t. So this is the speed v and this is time t. So which curve denotes the right way, that is how its velocity will change with time. So इधर जो बॉल गिर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम के साथ कैसा होगा, क्या एक्सलेट करेगा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, क्या, ये चारों कर्व आप देख सकते हो. फर्स्ट वन इज से ए कर्व इज लाइक दिस. सो वेलोसिटी इज इंक्रीजेस विथ टाइम, दैट इज इट इज़ अ एक्सलेटेड मोशन, राइट? सो नॉर्मली फ्री फॉल में जो होता है दैट इज एक्सलेटेड मोशन. सो दिस कर्व इज डिपिक्टेड लाइक दिस. द नेक्स्ट बी कर्व इज लाइक दिस. वेलोसिटी फर्स्ट बढ़ेगा, उसके बाद
कांस्टेंट हो जा रहा है, राइट, लाइक दिस. एंड नेक्स्ट सी कर्व इज लाइक दिस, दैट इज वेलोसिटी इज decreases with time, right? Velocity is decreases slowly decreases with time. And this curve, the d number curve, is very complicated curve, like this. पहले वेलोसिटी कांस्टेंट जैसा था, उसके बाद स्लोली इंक्रीज करेगा, स्लोली टाइम के साथ डीपली डिक्रीज करेगा. पहले स्लोली डिक्रीज करेगा ये जो सी कर्व था, और ये कर्व में ज़्यादा, पहले तो स्लोली डिक्रीज करेगा, उसके बाद डीपली डिक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा, तो स्लो डाउन हो जाएगा बहुत जल्दी. तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है. तो सोचिए कौन सा होगा आंसर. तो फर्स्ट थिंग ये है हाईली विस्कोस लिक्विड, मतलब यहाँ का रेजिस्टिव फोर्स जो है बहुत ही हाई है. मतलब एक बॉडी अगर है ये, तो नीचे तो हमेशा इसका मास एम एंड जी, मतलब वेट एम जी लगेगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. और क्या फोर्स लगेगा, एक बुएंसी फोर्स आएगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है, मतलब बुएंसी फोर्स एफ बी इन आउटर डायरेक्शन, मतलब इन अपर डायरेक्शन. एंड one force would be arise, that is viscous force, that is also, क्योंकि resistive force always the opposite direction to the motion, because it always opposes the motion. हमने सॉलिड में भी देखा था कि एक हम जानते हैं कि एक अगर बॉडी का मोशन अगर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द मोशन, बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, रिलेटिव मोशन को ऑलवेज अपोज करता है. क्योंकि ये सॉलिड देख रहा है, क्योंकि ये सरफेस देख रहा है कि बॉडी मोशन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट में लगेगा. दिस इज माय फ्रिक्शन फोर्स. तो लिक्विड के बारे में भी ऐसा ही है कि व्हेनेवर अ फोर्स is applied on this body, that is mg, that is body is moving towards downward direction. so liquid को लगेगा कि ये बॉडी नीचे जा रहा है तो इसको अपोज करना पड़ेगा. तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मतलब विस्कस फोर्स, वो होगा इन अपोजिट डायरेक्शन. सो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एफ वी जो विस्कस फोर्स होगा, दैट इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन है. ओके, नाउ एक चीज़ आपने शायद पढ़ी होंगी कि विस्कस जो फोर्स होता है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना. मतलब जब आपको वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगा विस्कस फोर्स भी इंक्रीज़ करेगा. मतलब विस्कस फोर्स होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, जितने ज़्यादा वेलोसिटी उतना ज़्यादा फोर्स, विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स. अब ये चीज़ आप शायद फील भी कर सकते हो कि देखोगे कि आप जब सपोज आप सोचो कि आप बाइक में हो या साइकिलिंग कर रहे हो, तो आप साइकिल के ऊपर बैठे होंगे, ऐसे बैठे हो और साइकिल जा रहा है. अब अगर धीरे धीरे जाओगे तो आपका जो बाल है और आपका जो कपड़ा है वो धीरे धीरे उड़ेगा, ऐसे पीछे जाएगा, है ना. लेकिन आप अगर ज़ोर से अगर चलाओगे साइकिल को और बाइक को, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है बाई एयर, वो आपको ज़्यादा आपको धक्का मारेगा और आपका जो बाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे चला जाएगा, उड़ जाएगा ऐसे, है ना. मतलब क्या है, आपका फोर्स अगर, मतलब आपका वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो आपके ऊपर जो फ्रिक्शन बाई एयर, दैट इज ऑल्सो विस्कस फोर्स, दैट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, दैट इज एयर ड्रैग, तो वो ज़्यादा होगा. लिक्विड के ऐसा ही होता है कि जब लिक्विड में बॉल का वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, विस्कस फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा. क्यों फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे एम जी फोर्स पड़ रहा है, मतलब दैट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन. तो बॉल नीचे जा रहा है, स्फेरिकल बॉल नीचे जा रहा है, तो मतलब उसके ऊपर एक्सेलरेशन मोशन होगा, क्योंकि इसके ऊपर एम जी फोर्स पड़ रहा है. कोई भी बॉडी हो अगर फ्री फॉल करेगा तो वो एक्सेलरेट करता है, वो नीचे है तो एक्सेलरेट करके मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन तो नहीं होता है ना. अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, फोर्स अप्लाई होगा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा. अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर गया तो यहाँ पर
विस्कोस फोर्स प्रेजेंट है। बुएंसी फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि बॉल का जो साइज है वो तो सेम है, लेकिन विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा। अगर एक टाइम ऐसा आएगा विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है वो नीचे लगने वाला mg के फोर्स के बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो फोर्स बैलेंस्ड, नीचे और ऊपर का वाला फोर्स। अगर फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स नलीफाई हो जाएगा। तो नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में चला जाएगा, है ना। मतलब पहले तो बैलेंस नहीं कर रहा था तो mg है तो बॉडी में वेलोसिटी बढ़ेगा। मतलब एक्सेलरेटेड हो रहा है, mg पहले ज़्यादा था, सो दैट्स वाई बॉडी विल बी दैट इज बॉल विल बी एक्सेलरेटेड। नाउ force is balanced, acceleration is zero, velocity is constant. That means ऐसे होगा कर्व, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी पहले बढ़ेगा उसके बाद धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। यहाँ पर देखो बी वाला कर्व ये वाला है ये, सो बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल था, समझ लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन तो आसान ही है। नाउ इफ the initial tension of a straight string is double, then the ratio of the initial and final speed of a transverse wave along the string, ठीक है। तो मतलब एक स्ट्रिंग है, सो जो पहले टेंशन था T, अभी उस स्ट्रिंग में टेंशन को मैंने डबल कर दिया, ठीक है। अगर टेंशन डबल हो गया तो जो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो ये ट्रांसवर्स फोर्स जो ट्रांसवर्स वेव जा रहा है ऐसे, उसका स्पीड में क्या चेंज हो जाएगा। जो स्पीड इनिशियल स्पीड सपोज v1, फाइनल स्पीड सपोज v2, तो पूछ रहा है कि v1/v2 मतलब v1 और v2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। पहले स्ट्रिंग थोड़ा सा स्लैक था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन कर दिया, लाइक जो गिटार में होता है ना। गिटार में अगर कभी कभी देखते होंगे कि स्ट्रिंग को खींचना पड़ता है, वो टेंशन इंक्रीज़ किया जाता है कि स्ट्रिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच रहो, है ना। तो वो करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रांसवर्स जो वेव क्रिएट होगा जो स्प्रिंग में, उसका वेलोसिटी में क्या असर होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है टेंशन के साथ, वो क्या है, ट्रांसवर्स फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ T/m, है ना। T है टेंशन, √T/m, एंड m है द मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट, टोटल मास नहीं है, टोटल स्ट्रिंग का जो मास वो नहीं है, पर यूनिट लेंथ का जो मास है दैट इज़ पर यूनिट लेंथ, है ना। तो देखो स्ट्रिंग तो हमने नहीं बदला ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जस्ट जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो चेंज किया है, लेकिन स्ट्रिंग को तो चेंज नहीं किया ना। तो स्ट्रिंग तो पहले जो था वही था, तो वही है, तो इसीलिए मास पर यूनिट लेंथ, अगर सेम स्ट्रिंग होगा तो मास तो सेम ही होगा पर यूनिट लेंथ का, तो मास में तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले था T1, अब हो गया है V1, अब हो गया है T2, V1 के लिए, V2 के लिए हो गया T2/m। T2 मतलब यहाँ पर डबल कर दिया, T2T कर दिया, और पहले था सिर्फ T, ऐसे। तो यही हुआ है चेंज। नाउ जस्ट डू रेशियो, है ना। तो √m तो कट जाएगा, √T तो कट जाएगा, सिर्फ रहेगा 1/√2। सो यहाँ पर देखना इनिशियल एंड फाइनल के रेशियो पूछा है, कभी कभी गलती से हम V2/V1 कर देते हैं, वहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सो V1:V2 करने से 1:√2 होगा आंसर, 1:√2 होगा आंसर। सो बी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा हमारा आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। नाउ
दिस क्वेश्चन, एन आइडल मशीन अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। तो एक सेम इनिशियल स्टेट में पहले सब कुछ था। तो द फिगर इज शोन इन फिगर which those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric। तो 4 प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। वन इज एडियाबेटिक, देन आइसोथर्मल, देन आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। एडियाबेटिक मतलब तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं होता है। आइसोथर्मल हीट टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। द कर्व which represents the adiabatic process among and is, वो चारों कर्व में से कौन सा कर्व एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये P वर्सेस V कर्व है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज P वर्सेस V कर्व, P वर्सेस V कर्व। यहाँ पर ये कर्व का मतलब क्या है? ये 4 जो 4th नंबर कर्व जो है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि V चेंज हो रहा है, लेकिन ये कर्व के लिए, सिर्फ 4 नंबर कर्व के लिए भी चेंज हो रहा है, लेकिन P इज़ कांस्टेंट। ये इस पोजीशन में क्या है? P इज़ कांस्टेंट, क्योंकि कर्व के लिए, ये कर्व के लिए P चेंज ही नहीं हो रहा है। P कांस्टेंट है लेकिन V चेंज हो रहा है। मतलब P कांस्टेंट मतलब क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक के लिए P कांस्टेंट होता है। तो 4 तो आइसोबारिक हो गया, एडियाबेटिक नहीं है, तो 4 चला गया। 4 तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये वाला कर्व देख लो, 1 वाला कर्व ऐसे है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो, ये कर्व में ऑन अ सर्टेन पॉइंट दैट इज V से V1, यहाँ पर देखो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यहाँ पर देखो ये कर्व के लिए देखो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बट P इज चेंजिंग, राइट? P इज चेंजिंग, ऊपर या नीचे कुछ भी कर लो, तो वॉल्यूम तो सेम है। ये कर्व के लिए जो 1 वाला जो कर्व है, इसके लिए वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ P अप और डाउन हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब P डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम एक्सिस में वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कर्व के लिए। तो ये हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, बिकॉज दिस इज अ आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हो गया है हमारा 2 कर्व। ये दोनों से कोई भी एक आंसर होगा, एक है 2, एक है 3। तो दोनों कर्व में देखो एक ही तरह का देखते हुए, एक 1 है P वर्सेस V, 1 कर्व है लाइक दिस एंड अनदर कर्व है लाइक दिस, ऐसे। 1 इज मोर स्टीपर, अनदर इज लेस स्टीपर, है ना? ये है 2 नीचे वाला और ऊपर वाला है 3, ठीक है? तो कौन सा होगा आंसर? तो हम जानते हैं व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट इज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि PV इक्वल्स टू RT कर्व में अगर T कांस्टेंट होगा तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। और है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और गामा इज द CP/CV, गामा इज द CP/CV। तो ये दोनों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन के लिए कौन सा कर्व होगा? देखो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब क्या है? P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा, मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जो कर्व होगा वो इसी तरह देखते हुए होगा, ठीक है? इसी तरह देखते हुए होगा। ये भी हो सकता है हम नहीं जानते कि कौन सा वाला कर्व, क्योंकि एक कर्व देख के तो हम पता नहीं चलेगा कि कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, कौन सा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम तो ये देख के तो नहीं बता सकते ना। तो ये दोनों में से अभी भी डाउट है कि कौन सा वाला आंसर होगा। और यहाँ पर देखो PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P इक्वल्स टू कांस्टेंट से K/V टू द पावर गामा। ये यहाँ पर देखो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द V टू द पावर गामा के लिए। सो दोनों कर्व में से कौन सा वाला कर्व राइट होगा? तो आप ये जानते होंगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसका कर्व अगर ऐसे होगा, अगर कोई भी क्वांटिटी तर्क उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगे तो वो ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ करेगा। अगर क्यूब के प्रोपोर्शनल होंगे तो वो और ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि क्यूब है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरा टर्म क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। तो इसीलिए जो पावर वाला टर्म है नीचे, उसका कर्व ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा,
ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ करेगा। मतलब ये दोनों कार्व में से कौन सा कार्व ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है। आप देख सकते हो कि ये 3 वाला कार्व है, अगर इसको बढ़ा दूंगा हम तो ऐसे ऐसे जा रहा है, और जो 2 वाला कार्व है वो ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, ऐसे ज़्यादा डीपली डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब इसका जो पावर है वो गामा होगा, है ना, क्योंकि गामा तो 1 से ज़्यादा होता है ना। अगर 1 हो गया तो ये हो गया, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ करेगा। तो इसीलिए जो स्टीपर कर्व है नंबर 2 वो हो जाएगा हमारा आंसर। दिस इज़ माय एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में यही होता है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है ना। ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, मतलब स्टीफर वाला जो कर्व है, दोनों कर्व्स में से जो स्टीफर होगा, ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, वो हो जाएगा हमारा एडियाबैटिक कर्व, दैट इज़ नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एसोसिएशन रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग का जो स्ट्रेच करने से जो हम मॉड्यूलस निकालेंगे, उसमें शेयर मॉड्यूलस में हम उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। और फोर्थ रीजन में क्या है, अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। तो दोनों स्प्रिंग है, एक कॉइल का जब एक कॉपर का है, एक स्टील का है, दोनों स्प्रिंग में कौन सा वाला स्प्रिंग में, मतलब मटेरियल चेंज है, एक कॉपर का है एक स्टील का है, कौन सी वाला स्प्रिंग में ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेन होगा, वो है रीजन में। और एसोसिएशन में कहा है कि जो स्प्रिंग है, जो कॉइल स्प्रिंग है, उसमें शेयर मॉड्यूलस होता है। ठीक है, हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसका मॉड्यूलस शेयर मॉड्यूलस से, क्योंकि हमारे पास 3 मॉड्यूलस है, एक है यंग मॉड्यूलस, दो नंबर में है बल्क मॉड्यूलस, एंड 3 नंबर में है शेयर मॉड्यूलस। तो क्या होगा आंसर, बल्क मॉड्यूलस होगा या यंग मॉड्यूलस होगा या शेयर मॉड्यूलस होगा? तो यही है हमारा क्वेश्चन। तो सोच के बताओ क्या हो सकता है ना। तो ऑप्शंस में देख सकते हैं कि बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज, मतलब रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी में है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सी में है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। एंड डी में है बोथ आर ट्रू बट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर राइट एक्सप्लेनेशन है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है, पहले देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू है या नहीं, उसके बाद करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग है, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, स्प्रिंग। सो दिस इज़ माई स्प्रिंग। ठीक है, एक स्प्रिंग है, इसको हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब ये यहाँ पर फोर्स लगा दिया और यहाँ पर फोर्स लगा दिया। ठीक है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, क्या लेंथ का चेंज होगा मटेरियल का? क्योंकि देखो, आप सारे अगर मॉड्यूलस को आप कंपेयर करोगे कि एक है मतलब लीनियर जो एक्सपेंशन जो होता है, दैट इज़ यंग मॉड्यूलस। मतलब यहाँ पर एक लोड मैंने दे दिया और लोड के लिए ये स्ट्रेच्ड हो गया ऐसे, मतलब यहाँ का लेंथ चेंज हो गया। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज़ हो गया हमारा स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एंड जो लोड है फोर्स बाय एरिया, दैट इज़ हो गया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करने से हमारा मॉड्यूलस मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम के लिए होता है, वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो उसमें उसके लिए वॉल्यूम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। और एक है शेयर मॉड्यूलस, जहाँ पर कोई शेप का चेंज होगा लेकिन उसके लिए कोई भी स्ट्रेस कुछ भी नहीं होगा, मतलब लेंथ का कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होगा। मतलब एक बॉडी है, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं, एक बॉडी है, इसको अगर मैंने ऐसे फोर्स दे दिया तो ये हो सकता है ये ऐसे हो जाए। तो क्या हो गया, इसमें एक एंगल का चेंज हो गया, मतलब ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन
और कुछ भी नहीं चेंज हुआ। लेकिन ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये सारे कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। इसका एरिया सब कुछ सेम ही है। इसका जो इनर एरिया था, पहला जो एरिया था, मतलब इसका वॉल्यूम। सपोज एक बुक ले लो आप, तो एक बुक में अब अगर ऐसे फोर्स लगाओगे अपर सरफेस में, दैट इज़ पैरेलल टू द सरफेस, तो क्या होगा, तो ये जो इसका जो शेप है थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, लेकिन और सब कुछ बराबर रहेगा। मतलब उसका जो वॉल्यूम है, लेंथ है, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको कहते हैं हम शेयर मॉड्यूलस। ठीक है। तो स्प्रिंग के बारे में क्या ख्याल है? स्प्रिंग में क्या, कौन सा वाला मॉड्यूलस आएगा? बल्क मॉड्यूलस आएगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या लेंथ चेंज हो रहा है, या इसका सिर्फ शेप ही चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं? तो देखो, हमने अगर ऐसे फोर्स लगा दिया स्ट्रेच करने के लिए, दोनों साइड से या एक साइड से, कोई भी कर लो, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्प्रिंग का जो, देखो स्प्रिंग के बारे में सोचो, ठीक है, स्प्रिंग का शेप ऐसे चेंज हो रहा है, स्प्रिंग का शेप ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन आप अगर देखोगे कि यहाँ पर देखो, जहाँ पर हम ये जो मॉड्यूलस हम निकाल रहे हैं वो मटेरियल के बारे में है, मटेरियल के। तो ये जो वायर हमने लगा है, ये जो वायर में जो मटेरियल से वो स्ट्रिंग बना है, उस वायर के में कोई भी स्ट्रेचिंग हो रहा है क्या? वही उस वायर स्ट्रेच हो रहा है क्या? वो वायर लंबा हो गया क्या? वायर लंबा नहीं हुआ है, स्प्रिंग लंबा हुआ है। स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, लेकिन वायर स्ट्रेच नहीं होगा। पहले जो यंग मॉड्यूलस था, यहाँ का वायर स्ट्रेच हो गया, ज़्यादा मास देने से वायर लंबा हो गया। लाइक रबर, एक रबर ले लो, उसको खींच दो तो वो लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो लंबा नहीं हो रहा है, उसका लेंथ नहीं चेंज हो रहा है ना, उसका वॉल्यूम भी सेम है। मतलब देखो, एक रबर है, एक मोटा वाला रबर है, उसको अगर स्ट्रेच कर दोगे तो लंबा हो जाएगा और पतला भी हो जाएगा। तो इसमें देखोगी कि इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसका लेंथ भी चेंज हो रहा है ना, ऐसे होगा। लेकिन ये जो स्प्रिंग का जो मटेरियल है, जो पतला जो वायर है, उसका तो शेप तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, उसका तो लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है। ये लेंथ बड़ा हो गया क्या? स्प्रिंग का जो वायर है उसका लेंथ की बड़ा हो गया क्या? सिर्फ क्या हुआ है, वो जो सर्कुलर जो कॉयल है वो थोड़ा सा ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया। मतलब क्या है, इसका शेप में चेंज हुआ है, सिर्फ जो कॉयल है उसका शेप में सिर्फ चेंज हुआ है। मतलब इसमें सिर्फ शेप के चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर शेयर मॉड्यूलस ही हो रहा है और कुछ भी मॉड्यूलस नहीं हो रहा है। मतलब ओरिजिनली इसका लेंथ चेंज नहीं, खींचते हुए स्ट्रिंग लंबा नहीं हुआ है। मतलब स्ट्रिंग का जो मतलब वायर है उसका लेंथ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ ये जो रिंग है, कॉयल है, उसका शेप में चेंज हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये है शेयर मॉड्यूलस। तो ये तो राइट है, ठीक है, असर्शन ट्रू है। और ये कह सकते हैं कि ये कॉयल ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये ट्रू है। कॉयल स्प्रिंग ऑफ कॉपर, मतलब दो स्ट्रिंग है, एक कॉपर का है और एक स्टील का बना हुआ है, ठीक है। दोनों में क्या है कि मोर टेंसिल, मतलब कॉपर मोर टेंसिल होगा स्ट्रिंग से, ये कह रहे हैं। सेम डायमेंशन, दोनों स्प्रिंग सेम देखते हुए, बट एक कॉपर का है एक स्टील का है, तो दोनों में कौन सा टेंसिल ज़्यादा होगा? ये कह रहा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि कॉपर ज़्यादा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक, तो इसीलिए स्टील का टेंसिल पावर ज़्यादा है, स्टील इज़ मोर टेंसिल। सो इसीलिए ये जो एसर्शन रीज़न लिखा हुआ है ये तो रीज़न ही गलत है, मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अगर रीज़न फॉल्स हो गया, देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन में दोनों ट्रू होने से तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे, दोनों तो ट्रू नहीं है। लास्ट वाला में भी दोनों ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है, ये तो फॉल्स नहीं है, तो मतलब बी हो जाएगा हमारा आंसर। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स contained in 4.5 kg वाटर इन एस टी पी। तो एस टी पी में जो 4.5 kg अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर ले ले, उसका क्या होगा,
वॉल्यूम वॉल्यूम कितना होगा वो कह रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो ये वाला क्वेश्चंस। ओके देख लो, तो हम तो जानते हैं कि जो एसटीपी में 1 मोल किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर, यही होता है 22.4 लीटर। अगर इसको हम देखो यहाँ पर देखो सब कुछ एसआई में हुआ है, एसआई में दिया हुआ है ऑप्शंस, तो इसीलिए हम क्या करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम का जो लीटर यूनिट में है इसको हम अगर मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करें तो 4.2.4 इंटू 1 लीटर मीन्स कितना मीटर क्यूब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 10⁻³ मीटर क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 1000 लीटर मीन्स 1 मीटर क्यूब होता है ना। तो 1 लीटर मीन्स 10⁻³ मीटर क्यूब। जो बड़ा वाला जो छत पे जो टैंक लगता है ना 1000 लीटर का, वो होता है 1 मीटर क्यूब का, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 1 लीटर हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वही मैंने लिख दिया मीटर क्यूब में, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन एसआई में दिया हुआ है। हो गया। नाउ तो ये तो 1 मोल के लिए है, लेकिन यहाँ पर कितना मोल है हम कैसे निकालेंगे, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 18 ग्राम, है ना। 18 ग्राम में जो 1 मोल होता है, 1 मोल का जो मास होता है दैट इज़ 18 ग्राम होता है ना। मतलब 18 ग्राम में 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल रहता है और 1 मोल का जो मास होता है दैट इज़ 18 ग्राम, वो इन्वर्सली हम कह सकते हैं, है ना। तो 4.5 kg मतलब कितना मोल होगा, तो 4.5 को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 4.5 इंटू 1000 करने से 4500 ग्राम, है ना। इतना मास में कितना मोल होगा, तो 18 ग्राम में इतना होता है, 1 ग्राम में होगा 1/18, तो 4500 ग्राम में कितना होगा 4500 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 मोल हो जाएगा। ये वाला क्या होगा मोल हो जाएगा। समझ में आया? 18 ग्राम में होता है 1 मोल वाटर के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग होगा। ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा। ऑक्सीजन के लिए हम कह सकते हैं कि 16, है ना, 16 ग्राम में 1 मोल होता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाटर के लिए क्या होता है 18 ग्राम से, तो 18 ग्राम में 1 मोल होगा। 1 ग्राम में कितना होगा 1/18 मोल, 1 ग्राम में 1/18 मोल होता है। तो 4500 ग्राम में कितना मोल होगा 5400/18 हो गया। तो इतना मोल है ना। तो हमने अभी देखा कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है ये 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इतने मोल में कितना वॉल्यूम होगा, तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसमें से इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम ये है एसआई में, तो इतना मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4500/18 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो है, यहाँ का -1 हो जाएगा। उसके बाद 2 से कट करोगे तो 9, 11.2 और करीब करीब 9 से कटोगे तो 1 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 2, 2 देन 4, 1.24 शायद एरकम ऐसे टाइप कुछ आएगा। सो 45 इंटू 1.25 करना, तो देखो सारे का मैग्नीट्यूड तो एक ही है, तो यहाँ पर तो 5.6 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.6 नहीं आएगा, 56 आएगा इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पर 5.6 नहीं, यहाँ 45 है, 45 इंटू 1.25 मतलब 56 आएगा।
56 इंटू यहाँ पर 10 इन्वर्स है, मतलब क्या है 5.6 मीटर क्यूब, यही आएगा। मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लेना कैलकुलेटर से, और आप कोई भी कर लो, ठीक है। 1.5 हो जाएगा आंसर। समझ में आया। 45 उससे ये वैल्यू देखो, ये 1 से ज़्यादा है, मतलब 45 से ज़्यादा ही होगा। सारे का मैग्नीट्यूड तो सेम दिया हुआ है, तो 5.6 तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर सिर्फ एक 10 इन्वर्स है, मतलब 1/10, तो 556/10 करोगे तो 5.6 ही आएगा, तो 5.6 हो जाएगा हमारा आंसर। सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये है टू पेंडुलम का। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, अच्छा, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज ऑफ लेंथ व्हाट, जस्ट अ मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चंस को करेक्ट कर लो थोड़ा सा। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ये दोनों टर्म मिसिंग है, ये दोनों टर्म यहाँ पर होगा लेंथ के बाद, ठीक है। टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर start vibrating in phase, okay, start vibrating in phase at some instant the two are in their mean position, two are at their mean position। ताले यहाँ पर क्या कहा है, in the mean position in the same phase। तो दो पेंडुलम है, यहाँ पर एक पेंडुलम है और एक पेंडुलम है बड़ा वाला, क्योंकि 121 सेंटीमीटर ये बड़ा वाला पेंडुलम है, ये छोटा वाला पेंडुलम है। तो एट सम इंस्टेंट टू पेंडुलम आर इन एट देयर मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन मतलब ये है मीन पोजीशन, जो मिडिल वाला पोजीशन है। पेंडुलम तो ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, ये भी ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो मीन पोजीशन कौन सा वाला है, ये एरो वाला पोजीशन है मीन पोजीशन। इन द सेम फेज, सेम फेज में है, मतलब दोनों का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, मतलब ये वाला है शॉर्टर पेंडुलम, after which the two are again in phase at the mean position। तो कितने ऑसिलेशन के बाद मिनिमम वाइब्रेशन, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वो दोनों सेम फेज में आ जाएगा एट द मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब दोनों सिंक्रोनस हो जाएगा आफ्टर विच नंबर ऑफ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, वो निकालना है। तो दोनों पेंडुलम के बारे में हमने देखा, दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो मतलब दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग होगा, है ना, टाइम पीरियड अलग अलग होगा। सो व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ देम, सिर्फ शॉर्टर वाले के लिए हमने T1 नाम दे दिया और बिगर वाले के लिए T2 नाम दे दिया। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जिनका, बिकॉज वी नो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√L/g, यही है फॉर्मूला, है ना, 2π√L/g। तो जिनका लेंथ ज़्यादा होगा उनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, मतलब वो धीरे धीरे कंप्लीट करेगा, ठीक है, स्लो होगा, है ना। टाइम पीरियड ज़्यादा मतलब स्लो होगा, टाइम ज़्यादा लेगा ऑन ऑसिलेशन के लिए, है ना। और जिनका लेंथ छोटा होगा उनके लिए टाइम पीरियड छोटा होगा, मतलब वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा। मतलब किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, शॉर्टर का, क्योंकि शॉर्टर के लिए टाइम पीरियड शॉर्ट है, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होता है किसी भी पेंडुलम के लिए। मतलब फॉर एनी टाइम पेंडुलम टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। मतलब स्लो होगा तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, 1/टाइम पीरियड, है ना। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। किसी का टाइम पीरियड ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा।
तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों पेंडुलम के लिए T1 N1 मतलब फर्स्ट पेंडुलम का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के लिए ये दोनों क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन ये इक्वल होगा। किसी का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा, तो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जैसे कि ये बैलेंस रहे हर कोई पेंडुलम के लिए। ठीक है, तो अभी हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर तो टाइम पीरियड तो दिया हुआ नहीं है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? तो आप ये देख सकते हो कि टाइम पीरियड जो होता है किसी भी पेंडुलम का, टाइम पीरियड जो होता है वो है √L के लिए प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π √L/g, ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। बाकी शब्द तो सेम है ना, दोनों पेंडुलम के लिए G सेम होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 2π तो सेम ही होगा। तो टाइम पीरियड कैसे वेरी करेगा? जिसका लेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम पीरियड वैसे वैसे वेरी होगा, मतलब लेंथ डिफरेंट होगा तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा। मतलब जिस पेंडुलम का हम ऐसे लिख सकते हैं T1 के लिए √L1 और T2 के लिए होगा √L2, है ना, प्रोपोर्शनल है। तो दोनों का अगर रेशियो निकाले तो क्या होगा? दोनों का अगर रेशियो निकाले सो T1/T2 हो जाएगा हमारा N2/N1, है ना। T1/T2 इक्वल्स टू यहाँ पर N2/N1, ये हम क्लीन कर देते हैं। अभी देखो T1/T2 मतलब क्या है? √T1 मतलब L1, T2 मतलब √L2, ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं T1 प्रोपोर्शनल टू √L1, T2 प्रोपोर्शनल टू √L2, सो T1/T2 मतलब √L1/L2, दैट इज इक्वल्स टू N2/N1। तो देखो L1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पेंडुलम का जो लेंथ था, ठीक है, फर्स्ट पेंडुलम मतलब हमने T1 को फर्स्ट पेंडुलम के लिए लिखा है, मतलब जो शॉर्टर वाला पेंडुलम है, शॉर्टर वाला पेंडुलम मतलब 100 सेंटीमीटर और लॉन्गर वाला पेंडुलम 121 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में अभी मिसिंग है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 100 लेंथ छोटा वाला L1 100 और बड़ा वाला लेंथ के लिए क्या होगा? 121। दोनों का यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, कट जाएगा सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। तो ये दोनों को रूट करेंगे तो क्या होगा? 10/11 आएगा। सॉरी, रूट करने के बाद रूट नहीं रहेगा, सिर्फ 10/11 आएगा, है ना, 10/11। सो N2/N1 इक्वल्स टू 10/11। N2 मतलब क्या है? N2 है सेकेंड वाला का, मतलब जो लॉन्गर वाला है उसका फ्रीक्वेंसी, और N1 है फर्स्ट वाला जो शॉर्टर वाला है उसका फ्रीक्वेंसी है 11। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि N1/N2 इक्वल्स टू 11/10, है ना, N1/N2 इक्वल्स टू 11/10 हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, तो शॉर्टर पेंडुलम में कितना वाइब्रेशन होगा आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज इन द मीन पोजिशन। तो शॉर्टर वाला, तो ये तो शॉर्टर वाला था ना N1, शॉर्टर वाला का फ्रीक्वेंसी तो 11 हो जाएगा, तो उसके लिए ये जो बिगर वाला है उसका 10 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो दोनों फिर से सेम पेज में आ जाएगा। मतलब शॉर्टर वाले के लिए सिर्फ पूछा है तो मिनिमम कितना वाइब्रेशन होगा शॉर्टर वाले में, तो फॉर 11 वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम दे विल मीट अगेन, दैट मीन्स इन द सेम पेज। सो आंसर हो जाएगा 11, राइट, ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल। तो आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस देखो इस साल नीट में सेकंड जो पार्ट है 11 का बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 7 क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन जो 12 का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 12 का क्वेश्चंस लेकर आएंगे। 12 का जो 2 पार्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कवर होगा, सेकेंड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स एंड लाइट कवर होगा। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर कोई भी क्वेरी हो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो इस नंबर पे,
और हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो कोलकाता में है, तो आप चाहो तो मीट भी कर सकते हो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून। और पढ़ाई अच्छे से करते रहना, और जो नेक्स्ट ईयर की नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो अच्छे से प्रिपेयर होना पहले से ही। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है, ऐसे भी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको डील करना चाहिए। तो आप अगर देखें तो आप इस साल के क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है। कभी कभी बोर्ड्स के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिया गया है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉमन क्वेश्चंस आ ही जाएगा। देख सकते हो कि अगर वैल्यू वाइज कॉमन नहीं भी आया तो आप कॉन्सेप्ट वाइज तो कॉमन आ ही जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस को देख कर ही आप आंसर तुरंत क्लिक कर सकते हो। तो आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन